السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں آمینہ زاہد۔ اسرائیل کے وزیر اعظم، وزیر دفاع اور فوجی سربراہ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون برقرار رکھنے کے لیے فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی شہریوں اور فوجی سلامتی اولین ترجیح ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب جنگ بندی کے اعلان کے باوجود لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ادھر لبنان اسرائیل مذاکرات کا ایک اور دور آج واشنگٹن میں متوقع ہے، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات میں بھی حزب اللہ کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران یورینیم باہر منتقل کرنے کی بجائے اس کی افزودگی کی سطح کم کرے گا۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ نیوکلیئر فائل منجمد اثاثوں اور لبنان سے متعلق 3 ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز سے جہاز 60 روز تک بغیر ٹیرف کے گزر سکیں گے، جبکہ صرف اسٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس لاگو ہوگی۔ اسحاق ڈار کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے اور سعودی عرب، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات ثالثی کے عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورہ پاکستان کے باعث اسلام آباد میں میٹرو بس سروس آج مکمل طور پر بند رہے گی۔ میٹرو بس حکام کے مطابق راولپنڈی میں سروس صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک جزوی طور پر بحال رہے گی، جبکہ صدر اسٹیشن تا فیض آباد روٹ فعال رہے گا۔ آئی جے پی روڈ سے پارک اسٹریٹ تک میٹرو بس سروس معطل رہے گی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے تمام ٹریلز بھی بند رہیں گے۔ دوسری جانب ایرانی صدر کے دورے کے موقع پر اسلام آباد کو خصوصی طور پر سجا دیا گیا ہے، جبکہ دورے کا مقصد خطے میں ثالثی اور سفارتی کوششوں کو فروغ دینا بتایا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ کے تھانہ کوٹلی سید امیر علی پولیس نے جیب تراشی کی وارداتوں میں ملوث صابر عرف صابرہ گینگ کے سرگناہ سمیت متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان ہسپتالوں، میرج ہالز، پارکوں اور دیگر رش والی جگہوں پر شہریوں سے نقدی اور موبائل فون چوری کرتے تھے۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور مزید انکشافات و برآمدگی کی توقع ہے۔ بارسلونا میں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد نے پاکستان کے قونصل خانہ جنرل کا دورہ کیا اور اسپین کو پاکستانی مصنوعات کی برآمدات کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ قونصل جنرل مراد علی وزیر نے وفد کو اسپین کی معیشت، مارکیٹ رجحانات اور پاکستانی برآمدات کے مواقع سے آگاہ کیا۔ وفد نے پاکستان اور اسپین کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ قونصل خانہ جنرل نے پاکستانی برآمد کنندگان کی معاونت اور دو طرفہ تجارت کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورٹ عباس کے نواحی علاقوں میں غیر قانونی طوطوں کے شکار پہ شکایات کا اضافہ ہو گیا۔ مقامی افراد کے مطابق چک نمبر 242، 258 اور دیگر میں طوطوں کا بے دریغ شکار جاری ہے، جبکہ محکمہ وائلڈ لائف مبینہ طور پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر بھاول نگر، ڈپٹی ڈائریکٹر بھاولپور، صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ شہریوں نے غیر قانونی شکار میں ملوث عناصر اور مبینہ غفلت کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ ہیڈ محمد والا کے قریب پتن لشکر پور میں دریائے چناب میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والے 57 سالہ شخص کی لاش ریسکیو 1122 نے طویل سرچ آپریشن کے بعد برآمد کر لی۔ ریسکیو ٹیم نے اسٹیشن کوآرڈینیٹر محمد اسلم کی نگرانی میں اسکوبا بوٹ اور لائن سرچ تکنیک کے ذریعے 20 سے 25 فٹ گہرے پانی سے لاش نکالی۔ سرچ آپریشن کے دوران پنجاب پولیس نے بھی ریسکیو ٹیم کے ساتھ معاون کیا۔ لاش کو لواحقین کی درخواست پر ریسکیو ایمبولینس کے ذریعے آبائے گھر منتقل کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں قومی پیغام امن کمیٹی کے زیر اہتمام ہم آہنگی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ملک کا امن ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے اور کسی کو امن و استحکام سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے شیعہ سنی اتحاد کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عاصم منیر اور شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک نے دفاعی اور سفارتی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کیا ہے۔
फिरोजवाला के इलाके राना टाउन के करीब सीसीडी पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबले में 2 मुश्तबा डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे कि पुलिस से आमना सामना होने पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 मुसलमान मारे गए जबकि 3 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुसलमान की शनाख्त कर ली गई और वो मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई जबकि फरार मुसलमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मौका पर बहिश्ती दरवाजे के दूसरे रोज कफल कुशाई कर दी गई। दरवाजा खुलते ही ज़ायरीन की बड़ी तादाद उमड़ आई, जिसके बायस शदीद बदनज़मी, धक्कम पैल और भगदड़ के वाक़यात सामने आए। मज़ीद जानते हैं तारिक महमूद कंबो से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर मौजूद हम। बहिश्ती दरवाजा की कुफल कुशाई का आज दूसरा रोज था। दीवान मसूद मसूद चिश्ती ने सजादगान के हमरा उर्स की बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजा की कुफल कुशाई कर दी है। आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन की बड़ी तादाद बहिश्ती दरवाजा गुजरने की सआदत हासिल कर रही है। दूसरी जानब उसका राज तकरीबन 90 के करीब ज़ायरीन जो है वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा बहिश्ती लाइन को हाका दरबार से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे रोक लिया गया था, जिसकी वजह से भगदड़ बचने से हालात काबू से बाहर हो गए थे। दूसरी जानब आज इंतजामात को बेहतर बनाने की बजाय कंटेनर लगाकर रास्तों को मजीद बंद कर दिया गया है। और इंतजामिया की जानब से बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की जानब से जगह जगह पानी की सुविधाएं लगाई गई हैं। इसके अलावा आपको सुथरा पंजाब का जो हमला है वो सफाई सुथराई का इंतजाम बेहतर बनाने के लिए हमा वक्त पहुंचा है। जी, मुस्तफाबाद के नवाही गांव छटियावाला में चंद रोज कबल जाबहक होने वाली आयशा सिद्दीका की मौत का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। मकतूला के अहले खाना ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि आयशा की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि मुबैना तशद्दुद का नतीजा है। वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। अहले खाना का कहना है कि मकतूला को मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी असियत का सामना था, जबकि असल हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और पोस्टमार्टम समेत तमाम शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन हम जब उधर पहुंचे थे तो लेकिन ये था कि उसके ऊपर तशद्दुद इतना था कि बेइंतहा तशद्दुद था उसके ऊपर। आगे पीछे भी उसके तशद्दुद करते थे। हमने यही समझा था कि शायद मामला हल्के फुल्के हैं जो खुद क्लियर हो जाएंगे, लेकिन तो उसने इंतहाई कर दी, हद कर दी। उन्होंने जब उसके ऊपर तशद्दुद इतना किया गया था कि उसके टांग में भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख़म थे, चोटें आई हुई थी, उसके पूरे जिस्म में निशानात थे। तो उसके जब हम पहुंचे तो उसके गले में फंदा, ये बोल रहे थे कि उसने मतलब गले में फंदा लगा के फांसी लिया, लेकिन फांसी नहीं थी। तकरीबन हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। ये था कि उसने इतनी लटकी, उसके पाँव जो फोल्ड हुए पड़े थे, कोई उससे महसूस नहीं करता। कोई हमें बता दे कि ऐसे फांसी ली जाती है तो हमें बताएँ। SHO अदरीस साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया था हमें, तो उनका शुक्रिया। तो इंशाल्लाह उनकी बातों से लगता था कि हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, लेकिन हम मरियम नवाज़ साहब से ये इतला है हमारी कि हमें इंसाफ मिले और इंसाफ हमें दिलाया जाए। साहिवाल के इलाके हड़प्पा में मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पुलिस अफसरान और एहलकार जुलूस और मजालिस की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का मुअस्सर निज़ाम भी कायम कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं राना सदाम हुसैन से, जो इस वक्त मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल में मौजूद हैं। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। मरकजी इमाम बारगाह हड़प्पा शहर मौजूद है। तारीखी शहर की ये इमाम बारगाह है। यहाँ पर आज जो देखने में मामला है, जो मुश्किलात यहाँ पे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अफसरान भी फील्ड में मौजूद हैं। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ ऑलवेज़ काइंड। जो हमारे अफसरान बाला ख़ासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे RPO साहब राना प्याज साहब और DPO साहब उस्मान टीपू साहब की हदायत के मुताबिक हमारे इस वक्त जो ओवरऑल हड़प्पे की मैं बात करना चाहूँगा कि हमारी 5 A कैटेगरी के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें से हर प्रोग्राम पे हमारे 10 से 12 जो जवान हैं, जिसमें हमारा लेडीज़ अमला भी शामिल है, वो ड्यूटी कर रहा है। और हर जगह हमने 3 लेयर्स वाली जो ड्यूटी है वो हम इनको दे रहे हैं। इसके अलावा हड़प्पा के 2 मरकज़ी जुलूस है। एक 9 मुहर्रम को होता है जो कि मरकज़ी इमाम बारगाह हड़प्पा से है, दूसरा 2 दासेल वो भी हड़प्पा की हदूद में ही है। 2 मरकज़ी जुलूस है जहाँ पर हमारे 150 से पौने 200 जवान है वो ड्यूटी करता है। तो हम अपनी ड्यूटी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी भी है और ये इबादत भी है, इसलिए हम ये 2 अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से तो हम माशाल्लाह सबसे मुतमईन है। हमारे साथ अच्छे तरीके से ये कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस वाले, और हम भी उनके साथ जिस तरह वो कह रहे हैं हम भी उनके साथ वही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मैं कहा इंशाल्लाह मौला ने चाहा कि सारे दिन
अमन अमान से गुजर जाएंगे। दूर है अब, क्योंकि अज़ादारों ने आना, यहाँ पे पानी की सबील करने, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, जनरेटर नहीं है और दूसरा हमें सबील नहीं मिली। ये आज 6 मुहर्रम है, 6 मुहर्रम यकम से लेके 6 मुहर्रम तक हमने रोज़ लगातार लगा रहे हैं, रोज़ लगा रहे हैं। अपना वापस वाले सानू बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं जी सर, और जगह जिथे अजादारी होंगी उस टाइम बिजली चले जाती है, चाहे दिन का रूट हो या रात का रूट हो, रात में तो बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी हमारी ठीक है, हमारे SHO साहबान जो इतने भी हैं हमारे इधर के मामला बिल्कुल ठीक है, हम उनसे मुतमईन हैं। हमारे मुहर्रम और हराम के जो रूट्स हैं या जो भी हमारे इधर के हमारा जो शेड्यूल है उस दौरान लाइट का जो है ना बड़ा ही प्रॉब्लम है। अक्सर हमारे मजलिस के दौरान लाइट चली जाती है, अच्छा लाइट जल्दी जाने के बाद हमारे मामला जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरा हमारे जो रूट्स हैं उस पर कोई सफाई नहीं है, कोई सबीलें नहीं है। जैसे CM साहबा ने फरमाया कि हमारे रूट्स पे जो है ना सबीलें होंगी, पानी के छिड़काव होंगे, कोई ऐसा काम नहीं नज़र आ रहा। जी सदर अंजमन हुसैनी अली सांसदार मरकज़ी इमाम बारगाह कसरे बतूल हड़प्पा अर्ज कर रहा हूँ। जो मेरे भाई ने अभी स्पीच दी है, मैं कहता हूँ मुझे बार बार 2 दफ़ा मैं सर राणा साहब आपको भी अपना बयान नोट करवा चुका हूँ, फिर मैं आला काम के पास भी गया हूँ। जो हमारे मेन जुलूस है उस वक्त लाइट बंद हो जाती है। हालांकि हमने CM साहब को किया, CO साहब को कहा हमें एक जनरेटर दें, कुछ सबील लगाए जी, कल लग जाएगी, कल लग जाएगी, कल तो को लग जाएगी। अब जुलूस इधर है, सबील उन्होंने भीड़ा चलाई है, सानू तो समझ नहीं लगन दी। हमने मातमी सारे उत्थे पानी पीन जान, उमें उठे त्या पई उमें उठे, कोई वो सड़क जितों जुलूस लंघने कोई मामलात नहीं दुरुस्त नज़र आ रहे। देखो ना कितनी आवाम खलोती है, इतने पानी की जरूरत है ना सर, सफाई की मामला तुहाडे सामने। उस्मान टिप्पू साहब पे मुतमिन है, RPO राणा यासनी पे मुतमिन है, SHO पे मुतमिन। देखो ना वो ड्यूटी पे खड़े और हमारे साथ शाना बशाना भी नहीं है। कुछ छोटा जहा फोटो क्या है, इन्होंने टफ टाइल लाई है, उन्होंने शहीदा च ना लिखा है, बस बाकी का याद ही, बाकी का फोटो सेक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है फोटो सर को भेज दी, सर हो गया, सर हो गया। और नाली इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है, डिप्टी कमिश्नर शाहीवाल को चाहिए था। इससे पहले भी हम इस पर निशानदेही कर चुके हैं कि एक तो रूट का रास्ता साफ़ नहीं है, दूसरा यहाँ पे जो है पानी की सबीलें वज़ीर आला साहिबा को मामू बनाया जा रहा है, आपकी ज़िला इंतज़ामिया मामू बना रही है कि CM साहब आपका हुक्म है कि जो रूट के मुहर्रम और हराम के रूट हैं वहाँ पे पानी की सबीलें होंगी। तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर सबील लगाई गई है, वो सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए। तो ये एक फ़ोटो सेशन पर इजलास चल रहे हैं, फ़ोटो सेशन के ज़रिए मामू बनाया जाता है और ये चूना लगाया जाएगा मेरे और आपके टैक्स के पैसों को। और इसमें ज़िला कौंसिल के जो एक्शन और जो एक्शन की राय ली और सब इंजीनियर साहबान जिनकी ज़िम्मे था ये यहाँ पे पानी की सबीलें लगानी थी, चीफ ऑफिसर के भी ज़िम्मे लगाया गया, कमिश्नर साहब के भी नोटिस में दिया गया, लेकिन सवाए पुलिस के कोई ऐसा इदारा यहाँ पे मुतरक हमें नज़र नहीं आ रहा। जी चौक सरवर शहीद में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पेशल ब्रांच मोहम्मद काशिफ की निशानदेही पर महकमा फूड और पैराफोर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात से तकरीबन 3000 मन गंदुम बरामद कर ली गई। हकाम के मुताबिक चक नंबर 605 TDA के रिहायशी नासिर वड़ाइश के गोदाम से 2000 मन, जबकि सुल्तान कॉलोनी के रिहायशी अलादिता भट्टी से 1000 मन गंदुम बरामद हुई। बरामद शुदा गंदुम को महकमा फूड के हवाले कर दिया गया, जबकि मुतलका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। साहिवाल के नवाही गांव 185 नोएल में पहला गुलाम मुर्तजा फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसमें मुकामी खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी और CCD सर्कल साहिवाल के इंचार्ज मकसूद खान थे। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 185 नोएल में मौजूद हैं। पहला गुलाम मुर्तज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। गुलाम मुर्तज़ा की बात बताता चलूँ, वो एक रोज़गार के सिलसिले में एक लड़का है 185 नोएल का बैरून मुल्क गया था, वहाँ एक ट्रैफिक हादसे में खालके किकी को जा मिला, उसकी याद में ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ इंटरनेशनल हॉकी के प्लेयर मकसूद खान साहब मौजूद हैं और CCD सर्कल के इंचार्ज में साहिवाल से, उनसे जानेंगे वो क्या पैगाम देते हैं नौजवान नस्ल को। जी, मैं मकसूद खान इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और डायरेक्टर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी रहा हूँ और DHA बिहाड़ी का प्रेसिडेंट हूँ और रीजन मुल्तान का भी चेयरमैन हूँ, पंजाब का भी हॉकी के हवाले से। सबसे पहले तो मैं मीडिया का अपने सदाम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं बारी साहब हैं, मकसूद भाई साहब हैं, हमारे भाई हैं, और नदीम भाई हैं, तार भाई हैं, सबका मेरे इधर भी भाई खड़े जी,
सारे भाइयों का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ और इनका बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मुझे इधर दावत दी, तो मैं बड़ा खुश हूँ। और मैं स्पोर्ट्स के हवाले से सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा जो अरबाब इख्तियार हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें बच्चों के हकूक़, बच्चों की जॉब्स के बारे में स्पेशली देखें। अगर उनको जॉब्स मिलेंगी तो वो बेहतर परफॉर्म भी करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी आएंगे, ताकि उनके जो अखराजात भी पूरे हों। जैसे मुझे देखे, मैं पुलिस में एज ए गेम बेस पे मैं इंस्पेक्टर भर्ती हूँ, मुझे पुलिस ने इंस्पेक्टर भर्ती किया है गेम बेस पे। अभी देखें आजकल तो जो जॉब्स है वो कांस्टेबल का भी होना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, आपने सही मेहनत की है, नीयतन मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है, आपने अच्छे साथ अच्छे दोस्तों से इनको साथ लेके आपने मेहनत की है और इनकी दुआओं से, इनकी वजह से, तो अल्लाह ताला भी आपको बिल्कुल आपकी सुनेगा। और देखो, अगर मैं इंस्पेक्टर हो सकता हूँ गेम बेस पे तो बाकी भी हो सकते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट है, बड़ा अच्छा। और ये जो भी आजकल जो भी इवेंट होता है ना, किसी भी गेम का हो, तो बिलीव मी, मैं आई स्वेयर कि ये वो इवेंट है जो जहाद है, आजकल के दौर में जहाद है। क्योंकि देखिए मोबाइल्स हैं और अदर काम हैं जो बच्चों में कोई ऐसे काम होते हैं बच्चे जिससे गलत कारियाँ करते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को एक मैनेज करती है, जो बुराइयों से बचाती है। स्पोर्ट्स जो भी करवा रहे हैं मेरे भाई करवा रहे हैं, तो ये एक जहाद है और मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा थैंकफुल हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे और भी इवेंट होने चाहिए। तो मैं सबका बहुत ग्राउंड आबाद होंगे और इसमें ग्राउंड भी आबाद होंगे और हॉस्पिटल के जो है वो भी जाना कम हो जाएगा, और जो नशे की आदत है, जो और भी बहुत सी बुराइयाँ उससे भी बचेंगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मकसूद खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने गुनागो मसरूफियात से वक़्त निकाला उन्होंने और हमारे इस टूर्नामेंट की रौनक को दुबाला किया। तो मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब कारी इफ्तिखार साहब का, ताया मोहम्मद अफजल साहब जो हमारे लेजेंड प्लेयर हैं, जनाब नदीम अहमद साहब और दूसरी पूरी इंतज़ामिया, जिसमें बाऊ फैज़ान है जिसने ये तनहा ये बेड़ा उठाया हुआ है। तो वो ये टूर्नामेंट का इनेकाद जो है मुर्तज़ा के नाम से वो करवा रहे हैं। तो हम थैंकफुल हैं उनके कि उन्होंने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पैदा किया है। तो ऐसी स्पोर्ट्स होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल हों और बुराइयाँ। ये सेहरा जो है जी माशाल्लाह 185 नाइनल के नाम है, क्योंकि हर साल ऐसा मेला लगा रहता है और लोग जो हैं ये इसको एंजॉय भी करते हैं। और ये है कि ये मोबाइल की दुनिया से बच्चे निकल के अब स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। और ये बाऊ फैज़ान का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि ऐसा अच्छा इवेंट उसने मुनक्कद किया है। और मेहमान जो हमारे आए हुए हैं, महमूद मकसूद खान साहब साबिक ओलंपियन है, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने वक्त से टाइम निकाल के आए हैं। है कि इस पूरे इलाके में हमारे गांव की बड़ी खुशनसीबी है कि ये सिर्फ इसी वक्त नहीं बल्कि हम भी तकरीबन 1999 से लेकर 2005-10 तक हम भी खेलते रहे इसी ग्राउंड में, और इस ग्राउंड की हम भी खेल के मैदान में जीनत बने रहे। उसके बाद फिर उम्र के तकाजे की वजह से छोड़ दिया, लेकिन शौक़ फिर दोबारा ग्राउंड में ले आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे गांव का भी बड़ा फ़ख्र है। इस पूरे इलाके में जो है ना, हमारे गांव में बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट होता है और हर साल होता है। तो मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह बड़ी रात के अंधेरे में, आधी रात में ये अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के यहाँ आए हैं, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये खेल की एक्टिविटीज़ जो हैं ये होनी चाहिए और हर स्कूल की सतह पे और हर खेल के मैदान में, हर गांव में, इसलिए कि ये इतनी बड़ी यानी कि सेहत के एतबार से और मोबाइल्स जो जितना हमारी नस्ल इस्तेमाल करती है उसको छोड़ दिया जाए और इसको अपना लिया जाए, तो हर एतबार से हमारा नौजवान बड़ी तरक्की कर सकता है और हर मैदान में कर सकता है। और हम देखते हैं कि जो भी इन एक्टिविटीज़ में चल रहे हैं माशाल्लाह वो हर एतबार से आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप सब हजरात का जी, SHO साहब का भी बहुत शुक्रिया, जनाब मकसूद खान साहब का भी और बाकी सारे मेहमानों का भी। और ये इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो देखते रहेंगे मेले। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है, हाँ, वालिदैन को यही पैगाम है कि मोहब्बत में उनको लेके और इन यानी कि खेल की सरगर्मियों में बच्चे ज़्यादा वक्त गुजारें, बजाय इसके कि इधर उधर की खराफात में जो बच्चे जाते हैं तो फिर वालिदैन से भी दूर हो जाते हैं और फिर वो लड़ाई झगड़े का भी सबब बनते हैं।
اور یہ کھیل کی تفریح ایسی تفریح ہے جو ایک محبت کا درس دیتی ہے اور اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، الفتیں بڑھتی ہیں اور نوجوان نسل جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے اس کے لیے سرمایہ ہے یہ کھیل، تو ہونا بھی چاہیے۔ اب بھی فیفا انٹرنیشنل جو چل رہا ہے، ورلڈ کپ جو چل رہا ہے، تو وہ بھی ساری دنیا دیکھتی ہے، تو یہ سلسلے چلنے چاہیے جی، ہونے چاہیے، اور ہر میدان میں ہر گاؤں کی یہ زینت بننا چاہیے۔ تو صدام صاحب کا بھی شکریہ جناب کا، یہ تشریف لے کے آئے جی۔ اب جو ہے نا اپنے بچوں کو کم سے کم 15 منٹ کی جو ایکٹیویٹی ہر حال میں کرائیں۔ 15 منٹ کی ایکٹیویٹی میں ہیپی ہارمون جو ہے نا کریٹ ہوتا ہے، تو جو بچہ 15 سے 20 منٹ سپورٹس میں کسی بھی چیز میں ایکٹیویٹی کرے گا نا، ہیپی ہارمون ایکٹیو ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نشو و نما ہر چیز یعنی کہ بچے کی جو ہے وہ خوش بلکہ ہیپی رہتا ہے سارا دن۔ موبائل کی دنیا سے نکلیں اور سپورٹس کو اپنائیں۔ بڑا مشکور ہاں 185 نال دے کھلاڑیاں دا جنہاں نے 185 نال دے کھلاڑی جڑے انتظام کیتا ہے، بہت اچھا انتظام کیتا۔ اسی بھی اس ٹورنامنٹ دا حصہ ہاں، اسی بھی ٹورنامنٹ کراؤن دے وچ پورا ساڈا حصہ ہوندا، کم کردے ہیں اسی بھی انشاءاللہ اسی کراؤندے رہاں گے، ٹورنامنٹ کراؤندے رہاں گے۔ سر نوجوان نسل نو کھیلنا چاہیے، والدین نو بھی ٹائم دینا چاہیے، بچوں نو ٹائم دین سکول واسطے، گراؤنڈ واسطے کھیلن دین، کم سے کم 1 گھنٹہ دین شام نو کھیلن واسطے، کھیلنا چاہیے۔ اوکارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈیلیوری کے لیے لائی گئی خاتون گلشن بی بی مبینہ طور پر بلڈ ریئیکشن کے باعث جاں بحق ہو گئی۔ متاثرہ خاندان نے الزام عائد کیا کہ دوران ڈیلیوری غلط یا تبدیل شدہ خون لگایا گیا، جس کے نتیجے میں زچہ و بچہ دونوں کی جان چلی گئی۔ ورثاء نے واقعے کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ کے مطابق واقعے کی انکوائری جاری ہے اور ڈاکٹر رفت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کی رپورٹ کے بعد ذمہ داروں کے تعین کے بعد محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ ساہیوال میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے مشترکہ اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق اور ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو نے ضلعی کنٹرول روم میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ شاہیوال میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال پر ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے مشترکہ اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق اور ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو نے ضلعی کنٹرول میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں مجالس جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ تمام سرگرمیوں کی لائیو مانیٹرنگ بھی جاری ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 807 مجالس اور 211 جلوس رجسٹرڈ ہیں، جن کی نگرانی ضلع انتظامیہ اور پولیس مشترکہ طور پر کر رہی ہیں۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کے مطابق 9 اور 10 محرم الحرام کے سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں، جبکہ حساس مقامات پر اضافی نفری بھی تعینات کی گئی۔ جہاں جہاں بھی رہا ہوں، جیسے میں اس شہر کے امن کے اوپر اللہ نظر نہ لگائے، آئی اپریشیٹ، میں جہاں بھی زندگی میں رہوں گا میں اس ساہیوال کے جو امن کے لیے علماء کا اور اس شہر کے موظفین کا جو رول ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا رہوں گا۔ اسی طرح یہاں کے جو ہمارے میڈیا سے تعلق ہیں، میرے دوست ہیں، بہت اچھے ہیں۔ یہ صرف آپ کے منہ کی بات نہیں ہے، دے آل آر ویری پازیٹیو، دے آل ریچ یو آؤٹ، اور آپ کو جہاں جہاں آپ جو پروگرام ہو یہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور بڑا اچھا پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محرم تمام پاکستان میں ساری پولیس، ساری انتظامیہ اپنا پورا زور لگاتی ہے، ہم نے بھی کسی طرح سے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ نے سر وی ور آلویز کائنڈ، روٹس کا سیو بھی ہیں، پی آر او کے ساتھ آپ ان ٹچ ہیں، کوئی ایسی چیز ہو بس ریکویسٹ آپ لوگوں کو یہ ہوگی کہ اس کو تصدیق کر لیں۔ ضرور آپ کو خبر دینے سے جس کا جو کام ہے ہرگز کوئی نہ آپ کو روک بھی نہیں سکتا، بٹ آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ لوگ تصدیق کر لیں کوئی ایسی اگر کوئی چیز ہو۔ ڈپٹی کمشنر سمیع اللہ فاروق نے بتایا کہ جلوسوں کے روٹس پر سیوریج، بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں اور میڈیا نمائندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف مصدقہ معلومات پر اعتماد کریں، افواہوں سے گریز کریں۔ حکام کے مطابق ضلع انتظامیہ کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال ہے اور کسی بھی اطلاع یا شکایت کے لیے شہری 04092000069 اور 04092000061 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایسا بنائیں گے کہ بارش بھی ہو تو اس کے اوپر کیچڑ نہ بنے، وہ ریت اور کیری ڈال کے اس کو ہم پورا سیٹ کر دیں گے انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں۔ تو باقی جو کام کی وجہ سے ڈسٹربنس تھی وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ہماری اس روٹ کے اوپر کافی حد تک ایڈریس ہو جائے۔
साहिवाल में मुबैना तौर पर LPG की खुद साख्ता महंगाई के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी रेट की बजाय 308 रुपये फी किलो वाली LPG 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि इंतजामिया और पैराफोर्स की जानिब से कार्रवाई न होने पर सवालात उठ रहे हैं। मजीद अखबार जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल जिला इंतजामिया हुकूमती रेट कायम करने में नाकाम। इंतजामिया और पैराफोर्स LPG माफिया के आगे बेबस और LPG गैस सरकारी रेट पर फरोख्त करवाने की में नाकाम। सरकारी रेट 308 रुपए और फरोख्त 500 रुपए में जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। साहिवाल जिला इंतजामिया हुकूमती रेट कायम करने में नाकाम। जिला इंतजामिया और पैराफोर्स की नाअहली के बायस LPG माफिया बेलगाम हो चुका है। सरकारी नर्ख 308 रुपए फी किलो के बावजूद माफिया शहरियों से 500 रुपए फी किलो वसूल करके खुलेआम दोनों हाथों लूट मार में मसरूफ अमल है, जबकि इंतजामिया मौसर कार्रवाई करने की बजाय महज फोटो सेशन और कागजी कार्रवाइयों के जरिए सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करने में मसरूफ दिखाई देती है। LPG माफिया की मनमानी ने गरीब अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। साहिवाल के शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदार अफसरान का एहतसाब करने और LPG माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन करके सरकारी नरखों पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सरगोदा में थाना सिटी की हदूद में 8 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची करियाना स्टोर से चीज लेने आई थी। मुबैना तौर पर दुकानदार ने ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची मौका पर ही जा बहक हो गई। सफाक मुल्जिम खून में लथपथ बच्ची को छत पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। सेवन शरीफ में शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मातमी जुलूसों मजालिस का सिलसिला जारी है। 6 मुहर्रम उल हराम को शाही मर्दान सखी बोदला बहार सिकंदर की मिजार से जुलजना का जुलूस सजादा नशीन दरगाह बोदला अख्तर हुसैन नकवी और इनके साहबजादे समीर हैदर शाह की क़ियादत में बरामद हुआ। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर मजलिस के बाद तजरा स्कूल इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। SSP जामशोरों की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। मुहर्रम उल हराम के मौका पर बल्दिया वाप्टा और दीगर इदारों की जानिब से सहूलियात की फ्राहमी जारी है, जबकि हजारों इज़्ज़ादारों ने शिरकत करते हुए नोहा ख़्वानी और सीना ज़नी की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जो जुलूस जो 6 मुहर्रम जो इनकाद दरगाह हज़रत शाह मर्दान सखी सिकंदर बोदला बार का थींदो आहे। गादी नशीन साईं अख्तर हुसैन जी हवेली खां हे जुलूस कम अज़ कम 200-300 साल पुराणो आहे, जेको असांजे बुज़ुर्गनि खां मुंहिंजे ॾाॾा साईं परॾाॾा साईं खां वठी निकिरंदड़ आहे। हे जुलूस मरकज़ी हज़रत अली अकबर जी शहादत जे सिलसिले में कढियो वेंदो आहे। ज़ुलजना जो जुलूस आहे, इन जो मुक़ाम सखी बोदला बार खां हितां इनकाद थींदो आहे, जंहिंमें सॼे सिंध खां संगतूं तंज़ीमूं आज़ादारी जे सिलसिले में हिते ईंदियूं आहिनि, जेके सखर खां वठी वेंदे कराची ताईं मुख़्तलिफ़ शहरनि जूं तंज़ीमूं हूंदियूं आहिनि, जेके आज़ादारी सां गॾु ज़ुलजना खे पुरसो ॾींदा हज़रत लाल शहबाज कलंदर जे रोज़े ते वेंदी आहे। उते मजलिस जो इनकाद थींदो आहे ऐं मजलिस खां पोइ वरी आज़ादारी जे सिलसिले सां रूट सां कर तजर ते नहर थींदो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्तु ताईं टाउन सेवन शरीफ जो तालुक जेको आहे तावन बि असां सां रहियो आहे, जंहिंमें पखनि जो ऐं मेडिकल कैंप जो मेडिकल हॉस्पिटल जी तरफ़ां बि इनकाद कयो वियो आहे। पखा बि ॾिना विया आहिनि ऐं हिन वक़्तु ताईं सफ़ाई जूं टीमूं बि आहिनि जेके पंहिंजो कमु कनि थियूं। मेडिकल ऐं बिजली वापडा जी टीम बि मौजूदु आहे ऐं इंक्रोचमेंट टीम बि असां सां कोऑपरेट करे रही आहे। सिक्योरिटी जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हींअर ताईं बहितर आहे। असांखे सिक्योरिटी जी अॼु सुबुह नफ़री पहुची वई हुई, जेकी पंहिंजी ख़िदमतूं अंजाम ॾिए थी पई रूट ते। हैदराबाद में इंतजामिया की मुबैना गफलत और अदम तवज्जुही के बायस शहर की अहम सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मुकीनों के मुताबिक गंदे पानी और ताफुन के बायस बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। शहरियों ने सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने और नकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। हैदराबाद इंतजामिया और वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन की गफलत और अदम दिलचस्पी के बायस शहर की अहम तरीन शारा नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर की मशहूर मारूफ और अहम तरीन शारा डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के ऑफिस के बाहर मौजूद सेवरेज का गंदा पानी इंतजामिया की गफलत का जीता जागता सबूत है। हैदराबाद के इलाके कासोवाड ठंडी सड़क पर मौजूद सेवरेज का गंदा पानी न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहा है, बल्कि इलाके में ताफून और गंदगी से पैदा होने वाली खतरनाक बीमारियों का सबब भी बन रहा है। यहाँ से हम स्टूडेंट है सेबिस के, और ये इतना पानी हुआ पड़ा है, आने जाने में इतना शोर है, गाड़ी नहीं आ रही, वो
आगे उतर नहीं रहे, सारा पानी पानी, इतने हम तैयार होके आ रहे हैं और सारे कपड़े गंदे हो जा रहे हैं। इनका कुछ करवाएं, जैसे ये तो साफ हो, मेन रोड है डीसी ऑफिस के सामने, लाइक काइंडली इनको साफ करवाएं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी तो बात सुने। और नियर डीसी ऑफिस, लाइक सारी डीसी ऑफिस उसके सामने ज़बरदस्त है, तो स्टूडेंट्स को तो आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, लाइक। और एक तो स्मेल बहुत ज्यादा है ना, लाइक, तो उसकी वजह से आपको ब्रीथिंग भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरफ इंतजामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से शहर हैदराबाद में बेहतरीन और मौसर इकदाम किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब ये मंजर आपके सामने है। यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का काम भी जो है वो नहीं किया जा रहा। ये शहर की जो इंतजामिया है उसकी ये नाअहली है कि डीसी साहब के ऑफिस के बिल्कुल सामने जो है सीवरेज का गंदा पानी जमा है। जी, सजावल में महकमा पब्लिक हेल्थ में मुबैना मेगा करप्शन के इल्जामात सामने आए हैं, जिनके मुताबिक करोड़ों रुपए की लागत से शुरू की गई मुतअद्दिद स्कीमें या तो नामुकम्मल है या सिर्फ कागजों में फ़ाइल ज़ाहिर करके फंड्स हड़प किए गए हैं। तहसील जाती की यूनियन कौंसिल गिल मोहम्मद बारन के गांव रहीम डिनो बारन में करोड़ों रुपए की लागत से कायम फिल्ट्रेशन प्लांट कई बरसों से बंद पड़ा है, जिसके बायस मकामी आबादी साफ पीने के पानी से महरूम है और आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इलाका मकीनों ने फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी तौर पर बहाल करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सजावल में जीए सिंध महाज के वाइस चेयरमैन सैयद नवाज शाह ने सजावल प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि सिंध में पानी की किल्लत, महंगाई, ग्रीन फार्मिंग मंसूबे और जुल्फकाराबाद स्कीम्स में दीगर मुबैना मुतनाज़ मंसूबों के खिलाफ 10 जुलाई को बिदीन में तहफ़्फ़ुज़ सिंध मार्च मुनक़्क़द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध की जुग्राफियाई हुदूद में तब्दीली और कराची को अलग सूबा बनाने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जुल्फकाराबाद मंसूबे के लिए मुबैना तौर पर जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट और रिकॉर्ड में रद्द बदल किया जा रहा है, जबकि सिंध को पानी की शदीद किल्लत का भी सामना है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुबैना साजिशों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। कोटरी में सेशन कोर्ट के सामने एक हादसा पेश आया, जहां रोड रोलर की स्टीयरिंग और ब्रेक मुबैना तौर पर फेल होने के बायस वो बेकाबू होकर क्रफ्ट पाथ पर चढ़ गया। खुशकिस्मती से इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। महीर के करीब गांव घाड़ी हुसैनी इमाम बारगाह में मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें बानियाने मजलिस बशीर अहमद हालू, परवेज अली हालू और नवीद अली हालू की जानिब से फर्शे इज़ा बिछाया गया। मजलिस से इलामा गुलाम अब्बास, इलामा रियाज हुसैन जाफरी और इलामा जवाद हुसैन जोहरी ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी इंसानियत के लिए मुआशले राह है और करबला का पैगाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। मजलिस में नोहाखानी भी की गई, जबकि सैकड़ों इज़्ज़ादारों ने शिरकत की। आखिर में दुआए खैर और लंगर तकसीम किया गया। लियाकतपुर के इलाके आलाबाद में हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के झूला मुबारक का जुलूस इमाम बारगाह सैयद हादी हुसैन मरहूम से बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में इज़्ज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस से क़िबल इलामा सैयद सफदर नकवी ने मजलिस एज़ाज़ से खिताब किया और वाक़या करबला पर रोशनी डाली। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ पुरअमन माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुआ। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। उमरकोट के इलाके खोखरा पार में नौजवान को मुबैना तौर पर बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़े पर SSP उमरकोट सुहाई अजीज तालपुर ने नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। SHO खोखरा पार से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। हुकाम ने वाज़िया किया कि ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि शहरियों और इंसानी हकूक़ के हल्क़ों ने मुतासरा नौजवान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। तर्जमान CCD पंजाब के मुताबिक गुजरांवाला रीजन में मुअस्सर हिकमत अमली के बायस संगीन जराइम में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक डकैती, रहसनी, कार और मोटरसाइकिल चोरी समेत मुख्तलिफ वारदातों में 60 से 85% तक कमी आई है। रवा साल कार छीनने का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। CCD के मुताबिक ये बेहतरी मरबूत हिकमत अमली और सख्त कार्रवाइयों का नतीजा है। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शहराजी के मुताबिक शहर भर में आज बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ जनरल होल्ड अप किया जाएगा और किसी भी मोटरसाइकिल
सवार को बगैर हेलमेट दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। माल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड और मेन बुलेवार्ड समेत अहम शाहराहों पर खुसूसी नाकाबंदी की जाएगी, जबकि दाखिली रास्तों पर भी टीमें तैनात होंगी। CTO लाहौर के मुताबिक सख्त कार्रवाई का मकसद रेवेन्यू नहीं बल्कि शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि हादसात में ज्यादातर अमवात हेड इंजरी के बायस हो रही हैं। लाहौर में मुहर्रम उल हराम के दौरान पुलिस के नो कंट्रोल रूम से मुजालिस और जुलूसों की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक आज 7 मुहर्रम को शहर भर में 424 मुजालिस और 99 जुलूस बरामद होंगे, जिनमें से A, B, C कैटेगरी की मुजालिस शामिल है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक़ मियाना के मुताबिक तमाम कंट्रोल रूम्स बाहमी राब्ते में रहकर सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी ने कैमरों से भी मुसलसल मॉनिटरिंग जारी कर दी है। डिफेंस सी में गाड़ी से मिलने वाली लाश के केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। तर्जुमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में खानदानी तनाज़ात और जहनी दबाव के शवाहिद मिले हैं, जबकि इब्तदाई शवाहिद कत्ल की बजाय खुदकुशी की जानिब इशारा करते हैं। अहले खाना के मुताबिक मुतवफ़ी आदिल गुज़िश्ता अरसे से परेशानी का शिकार था और इसके खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें भी ज़ेरे इल्तवा थी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और ख़त्मी नताइज मुकम्मल तहकीकात के बाद सामने आएंगे। रेस कोर्स पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश नुमान को कुर्बान लाइन की कच्ची आबादी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 1020 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई, जो वो इलाके में सप्लाई करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गुलशन इकबाल पुलिस ने 15 कॉल पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी की तालिबा को हिरासत करने वाले रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तालिबा इम्तहान देने जा रही थी कि मुलजिम अमजद इसे मंजिल की बजाय सुनसान जगह पर ले गया और इसे हिरासत किया। बादशाह तालिबा की इतला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए खवातीन को हिरासत करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की। लाहौर कैंटवियन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना शराकोट में दर्ज अगवा के मुकदमे में मतलूब 28 साला खातून को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया और मुलजिम परवेज को गिरफ्तार कर लिया। SP कैंट अख्तर नवाज के मुताबिक एडिशनल SHO हरबंसपुरा कायनात शहजादी ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मखफिया को बाजियाब कराया। खातून की बाजियाबी पर अहले खाना ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि SP कैंट अख्तर नवाज ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए तारीफी असनाद का ऐलान किया। मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी और फर्ज शनासी की मिसाल कायम करते हुए M5 पर ज़ाहरी पीर के करीब लाखों रुपए मालियत का गुमशुदा सामान बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया। तर्जमान सैयद इमरान अहमद के मुताबिक कराची से रहीम यार खान जाने वाले मुसाफिर का मोबाइल फोन लवाजमात से भरा कार्टन बस में रह गया था, जिस पर हेल्पलाइन के जरिए इतला दी गई। मोटरवे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बस को रोककर सामान बरामद किया, जिसकी मालियत 3,60,300 रुपए बताई गई है। तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद सामान मालिक के हवाले कर दिया गया, जिस पर मुसाफिर ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने सिविल लाइन टिवियन में एंटी क्राइम मीटिंग की, जिसमें मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी और इंसदाद जुराइम की कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। अजलास में SHOs को हिदायत की गई कि वो क्राइम कंट्रोल, इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी और मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दें। DIG ने मुहर्रम उल हराम के दौरान मुकम्मल अलर्ट रहने, मजालिस और जुलूसों के रूट्स पर मौजूदगी और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। अच्छी कारकर्दगी पर SHO मुगलपुरा को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया गया। लेस्को में बदउनवानी और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर इजरा सब डिवीजन के मीटर रीडर गुलाम मुर्तज़ा को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। तर्जमान लेस्को के मुताबिक महकमाना इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि मुलाजिम को दिफा और समात के तमाम कानूनी मौके फराहम किए गए। जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने कहा कि इदारे में बदउनवानी और बेज़ाब्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर अमल पैरा है।
लेस्को नादन सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ सब डिवीजन में डायरेक्ट सप्लाई कनेक्शन, शर्तशुदा मीटर्स और गैरकानूनी कनेक्शन पकड़े गए। तर्जमान लेस्को के मुताबिक कोट अब्दुल मालिक, शादरा, बिलालगंज, भाटी गेट, बादामी बाग और गुलशन रावी में मजमूई तौर पर मुतादिद बिजली चोरी के केसेस सामने आए। तमाम गैरकानूनी कनेक्शन मनक़ता कर दिए गए, जबकि मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट के मुताबिक रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी है। हेड मोहम्मद वाला के इलाके अड्डा सरूर वाला में 5 बच्चों की मां गुज़िश्ता 12 रोज से लापता है, जिस पर अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार है। मुतासरा शोहर इरफान के मुताबिक थाने में दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल खातून का कोई सुराग नहीं मिल सका। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, बाज़ियाबी और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया, जबकि बच्चे की वालदा की जुदाई में शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है। कसूर में दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला इंतजामिया की ज़ेर निगरानी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस मश्क में रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस और रेंजर समेत दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कसूर मोहम्मद रियाज कंबो से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर कसूर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं इस हवाला से। जी, आज हमने पाकिस्तान आर्मी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू 1122 और जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक जॉइंट प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया है। मकसद हमारा बड़ा सिंपल है कि हमारा जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है और ख़ास तौर पे जो हमारी करना और इस प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो मुनास को भी ये कॉन्फिडेंस देना कि इन केस ऑफ एनी कॉन्टीजेंसी या फ्लड जो है इंशाल्लाह जो रेस्क्यू और रिलीफ मेजर्स लिए जाएंगे उसमें इंशाल्लाह कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर कसूर की बात सुनी, उनका यही कहना है किसी भी हंगामी सूरत हाल के निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया हम्मा वक्त तैयार है। जी, लिया में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जुलूस और मजालिस के रूट्स की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। वसी जानते हैं लिया से आमिर अली अवान से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलूँ मुहर्रम उल हराम के हवाले से, जहाँ पे लिया पुलिस की जानिब से बाकायदा रूट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाता है। वहीं जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उसकी जानिब से क्या इकदामात बरोए कार लाए जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। जो सेफ सिटी मैनेजर हैं अब्दुल अहद, उनसे स्टांस लेंगे। सर बताइएगा कि जो है क्या इकदामात किए जा रहे हैं हालिया मुहर्रम उल हराम में। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास टोटल 190 कैमराज हैं जो कि हमारे 46 पॉइंट्स पे लगे हैं। मुहर्रम हवाले के वाले से हमारे पास ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के जितने भी सिटी के जो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबको कवर कर रहे हैं। उनमें हमने अभी जो है वो टोटल 17 पॉइंट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए थे थ्रू ड्रोन। हमने उसको पहले ही एक सर्विलेंस के तौर पे अपने सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, हमने कहाँ कहाँ पे कैमरे लगाने और फिर सिक्योरिटी ब्रांच के साथ मिलकर हमने एक प्लान बनाया। अभी हम जो 17 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया वहाँ पे हम तकरीबन 28 अपने कैमरास और 37 जो हैं वो हमने डीसी ऑफिस के कैमरास लगाए हैं। इसके अलावा हमारे पास ड्रोन भी है। इसके अलावा हमने जो हमारे 15 बॉडी कैमरास हैं जो कि हम हेड और टेल को भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे भी उसको जहाँ पे हमारे कैमरे की कवरेज नहीं थी वहाँ पे हम बॉडी कैम्स को भी दे रहे हैं। इससे यह है कि हमारी 100% जो है वो कवरेज हो रही है। इसके अलावा ये हमारे पास एमरजेंसी आई का सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं ये डिजिटल हमारी सर्विलेंस कर रहा है रूट की। उसमें यह है कि जैसे जैसे ये हमारा जुलूस आगे मूव करता जाएगा वहाँ पे हम अपने कोऑर्डिनेट्स को अपडेट करते रहेंगे। उसमें यह है कि हमारा कोई भी SHOs या DPOs या जितने हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं वो एमरजेंसी आई के थ्रू हमारे रूट को मॉनिटर कर सकते हैं कि इस टाइम ये किस जगह मौजूद है, इसका टाइम क्या है, कि टाइम की जो पाबंदी है ये कर भी रहे हैं कि नहीं। जैसे वो टाइम से वो ऊपर जाएंगे तो वो अलर्ट जारी कर देता है। इसके अलावा उसके अंदर हमारे पास टोटल फ्लैश पॉइंट्स हर चीज़ मौजूद है, तो इससे हम ये है कि वो हमारे कोई भी पॉइंट इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार्ट सुना और सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा बॉडी कैम, ड्रोन्स और जो सेफ सिटी की जानिब से लगाए गए जो कैमरे हैं सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए जो है मौसर इकदाम लिए जा रहे हैं। जी
चौक सरवर शहीद में अतायत के खात्मे के लिए महकमा सेहत की कार्रवाइयाँ जारी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रजा की निगरानी में मुख्तलिफ मकामात पर क्रैकडाउन करते हुए 2 गैर कानूनी क्लिनिक्स सील कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान अड्डा रियाजाबाद में सोहराब क्लिनिक और सनावा मोड़ पर अब्दुल्ला क्लिनिक को गैर कानूनी तौर पर चलाने पर सील किया गया, जबकि मुतलका चालान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिए गए। डॉक्टर मोहम्मद रजा ने कहा कि अतायत के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेगी और शहरी सिर्फ मुस्तनिद डॉक्टरों से इलाज करवाएं। CBA वासा की जानिब से वासा बीट रिपोर्टर एसोसिएशन पंजाब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई। 9 मुंतखब सदर शौकत अली, जनरल सेक्रेटरी कामरान अली, सीनियर नायब सदर कमर अब्बास नकवी, नायब सदर ओमिया एजाज शरीफ, फाइनेंस सेक्रेटरी अहमद हसन, ज्वाइंट सेक्रेटरी अली रजा रहमानी और मेंबर्स गवर्निंग बॉडी मलिक मुबारक संधीला, जहीर अब्बास, आमिर इकबाल और दीगर को इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई। पैगाम में कहा गया कि सहाफत, शफाफियत, एहतसाब और अवामी आगाही का अहम जरिया है। ये एसोसिएशन इदारे और मीडिया के दरमियान राब्तों और ताउन को मजीद मजबूत करेगी। CBA वासा ने उम्मीद जाहिर की कि 9 मुंतखब ओहदेदारान सहाफती इक़दार और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को फरोग देते हुए तंजीम को कामयाबी की नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। चेयरमैन असलम भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राना सलीम बल्लू, ज्वाइंट सदर अफजाल शेर, वाइस चेयरमैन हाजी अरशद, नायब सदर हमाद कुरैशी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।